थोड़ी सी शर्म आई कि 3 बच्चों की माँ के पीछे मैं पड़ा हुआ हूं। कभी शर्म नहीं आई। नहीं। एक घर में सफ़े मातम बिछी हुई है और आप उसी घर में बेवा को गिरफ्तार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं नारंग मंडी में, जहां पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये वाक़या इंतहाई दर्दनाक है और दिल दहला देने वाला है। 38 साला मरियम ने अपने आशना से अपने शोहर को किस तरह से कत्ल करवाया, आइए जानते हैं। मेरे साथ इस वाक़े के मरकज़ी मुल्ज़िमान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह से आशिकी चलाई और फिर किस तरह से पुलिस स्टेशन तक पहुँचे। क्या नाम है आपका? अजय। आपका नाम क्या है? कृष्णा। आपका? शान। अजय साहब, ये आशिकी कब से चलना शुरू हुई? सर जी साड़ी कम से कम ना 1.5-2 साल हो गए ने। कल करदे ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਐਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। आपकी शादी हुई है? जी पहले हुई सी, डिवोर्स हो गया मेरा। कितनी शादियाँ हुई हैं आपकी? 2 शादी हुई। 2 शादियों के बाद भी एक और शादी के लिए तैयार? ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ शुरू। पहली 2 शादियाँ करवाई हैं, वो किसकी रजामंदी से? वो घर वालों तो ये आपकी रजामंदी से होने जा रही थी? नहीं, शादी तो नहीं सी जी हुई साडी। करनी भी नहीं चाहते थे? ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ तो ਇਸ में। फिर उसको क्यों तबाह कर दिया? ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰੀਮ ਨਸੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨੇ ਮਾਰਦਾ, ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਸੰਭਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਹੀ मतलब ਜਾਂਦਾ। आप मोटिवेट करते थे उसे? ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ये सच कह रहे हो ना? ਹਾਂਜੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹਮ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੁਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ फिजिकल थे आप उसके साथ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ कितनी बार हुए? ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। पहले कब हुए? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਸਾਂ। कहाँ पे रुके थे? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਘਰ। उस्ताद कौन थे? ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ क्या काम करते हो आप? ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ठीक है। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਵਾਪਸ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਭੇਜ। उसके कितने बच्चे हैं? 3 ਬੱਚੇ। 3 बच्चे हैं। आपका कोई बच्चा नहीं है? ਨਹੀਂ। थोड़ी सी शर्म आई कि 3 बच्चों की माँ के पीछे मैं पड़ा हुआ हूं। कभी शर्म नहीं आई? नहीं, बहुत ज़्यादा आंधी। अब आती है ना, पहले आती थी? पहले भी आती सी। अच्छा, कोई लड़की नहीं मिली आपको? नहीं, मैं कभी दिलचस्पी नहीं सी ਲਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ पहले ਗੱਲ। 2 ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੱਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਲਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ? ਮੈਨੇ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਗਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਸਕੀ ਸੈਨ ਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਈ, ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਲਾ। ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ ਬੇਫਜ਼ੂਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਘਰ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜ ਲਏ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਗਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬੇਹੋਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਸਾਹਬ ਕੇ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੇ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਇੱਟ? ਇੱਟ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮਰੀਮ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਫੜੀ, ਇੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। इस काबिल हो आप कि आप तीसरी शादी कर सकते? दो पहले बीवियां आपको छोड़कर गई हैं कि आपने तलाक दी थी? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਲਾਕ इसका मतलब ये हुआ कि दो बीवियां आपसे नाखुश थी और आप नामर्द थे। सर जी यही मतलब हुआ ना? आप तीसरी शादी करने जा रहे थे, बच्चों को यतीम करने जा रहे थे, उन बच्चों को जिनका बाप उनको कमा कर खिलाता था। आप कौन है उनके पीछे? ना माँ रही ना बाप। तुम इस काबिल हो कि तुम उसको दो, बच्चों को खिला सकते हो? नहीं सर। एक कदम उठाने से पहले तुमने अपने माँ बाप से मशवरा किया था? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜੇ ਕੀਤੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵਾਇਫ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। बहुत माजरत के साथ ये मैं तल्ख कलामी के साथ बात इसलिए कर रहा हूँ, ये उनके लिए सबक होगा जो लोग इस तरह की हरकत करना चाहते हैं, जो इस लाइन में चल पड़ते हैं कि भाई हमें इश्क हो चुका है, हम किसी के साथ शादी करना चाहते हैं। और भाई आप किसी का फ्यूचर देखो, आपने 3 बच्चों को यतीम कर दिया, उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी, वो किसी को नज़र नहीं आता। अगर आज मैं इनके साथ प्यार से बात करूँगा तो कल को यहाँ पे कोई और भी खड़ा होगा, उसको पता होगा कि भाई इनके साथ तो बहुत अच्छा सलूक किया जाता है। सर तुसी दसो, तुसी तो बड़े शरीफ जे नज़र आते पे हो, तो यह की कीता तुसी? क्या कहते कीता? लत्तां बावां फड़दे पे सी, बड़ा शौक है लत्तां बावां फड़न दा। उत्ते मूँह करो, कैमरे वाल वेखो, तुहाडे लिए लगा कैमरा जी। हुक्म करें सर। मरियम क्या मशूका थी आपकी? बहन थी आपकी? क्या लगती थी? मासी मासी लगती थी। मासी के कहने पे इतना सब कुछ? प्यो दा कहना नहीं मनिया होना कदे? किन्ने भैन भराओ? किनिया भैन ने? एक बहन है। अगर उसकी शादी होती है, उसके शोहर को कोई कत्ल कर दे, खुश हो जाओगे? किसी के बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया, अब आप खुश हो? जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठीक ठाक हैं? कोई तकलीफ तो नहीं है? सब ठीक जा रहा है? सर, मैं आपके लिए आया हूँ, बताएं ये किसके कहने पे किया आपने? मरियम ने तो मरियम क्या लगती थी आपकी? मासी लगती थी। मासी लगती थी? तो मासी तो बड़े प्यार करने वाली होती है, तो उसने आपसे ये गलत काम करवा दिया। बस उस टाइम समझ नहीं लगी है, अकल पे पर्दा पड़ गया है। अच्छा, आपके पास अकल है? ये कहाँ से आती है अकल? बता दें मुझे भी पता चले, मैं लोगों को बताऊं कि अकल पे अगर पर्दा पड़ने लगे तो आप रुक जाइएगा। सर बस समझ नहीं लगी है। तो मुझे बताएं ना कैसे पर्दा पड़ा था? सर बस उस टाइम समझ नहीं लगी है, तो किस टाइम क्या कर रहे थे आप? जिस टाइम कत्ल करने लगे थे उस टाइम समझ नहीं लगी है। आपने भी हाथ बाजू पकड़े थे? जी। उसने तो छुड़वा लिया थे, फिर पकड़ लिए? तो उसकी बीबी ने ईंटें ऊपर मार दी थी उसके, कितनी ईंटें मारी? 3-4 मारी थी। आपने कुछ नहीं किया? आपने कहा नहीं खाला छड़ दे यार? नहीं वो पता नहीं क्या बना, उस टाइम समझ नहीं लगी है कुछ। कुछ तो किसी ने समझाया ही होगा ना? कुछ नहीं समझ लगी जब है। घर छोड़ के आए थे अपना, भागे थे इसके अजय साहब के साथ, तो तब किसी को बताया था घर में कि मैं ये करने जा रहा हूँ? नहीं कोई हथियार वगैरह लेके निकले थे? नहीं। अगर वो आपको गोली मार देता फिर? बताएं, शादी हुई है आपकी? नहीं शादी करने का शौक तो होगा। फिलहाल तो अभी तो नहीं है। अब क्या, किस चीज़ का शौक रह गया? अब फिलहाल माफ़ी का है। अच्छा, माफ़ कर दें आपको। तो जिन बच्चों को यतीम किया उनका क्या होगा? उनको कमा के खिला दोगे? उनकी माँ भी जेल में चलेगी है, बाप चला गया वैसे ही दुनिया से। क्या करें आपका, आपके साथ क्या करें? चाय वगैरह लाएं आपके लिए? हमें ये फ्यूचर नहीं चाहिए, हमें ये यूथ नहीं चाहिए। ये आप लोग अजय शान ये सब कुछ बन के आप कोई हीरो नहीं बन जाते।
आप जो कदम उठाने लगते हैं पहले सोचिए, 1000 बार सोचिए, फिर किसी से मशवरा कीजिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये अच्छा करने जा रहा हूँ, ये गलत। हमारे पास ना तालीम होती है, ना पैसा होता है, ना घर होता है, लेकिन हम किसी का घर जरूर तबाह कर देते हैं। मेरे साथ एसएचओ साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मुलजिमान को किस तरह से आपने पकड़ा और किस तरह से अब कार्रवाई जारी है। मेरे साथ थाना नारंग मंडी के एसएचओ साहब इमरान डोगर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से कार्रवाई की थी। सर मुझे ये बताइए, बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं और आपके सामने बहुत से ऐसे केसेस भी आते होंगे, इस केस में सबसे अलग बात आपको क्या लगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस केस में सबसे जो अहम और अलग बात है कि इसमें जो मर्डर का मोटिव है और मर्डर दोनों में बड़ा फ़र्क है। जो रूटीन मैटर केसेस होते हैं उनमें मर्डरर कत्ल करने वाला दुश्मन होता है या डाकू होता है, जिसने कोई ना कोई चीज़, या तो उसका को अपने पर्सनल मैटर में उसने बदला लेना होता है या कोई लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसमें एक तो मारने वाले अपने, और अपने कौन कि जो दुनिया में सबसे अजीज़ और करीबी रिश्ता होता है। जी हाँ, कि इसमें बीवी ने कत्ल किया अपने आशनाओं के साथ मिलकर। किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा मुलजिमान तक पहुंचने के लिए? जी इसमें काफ़ी सारी मुश्किलात थी, क्योंकि एक तो सबसे पहले जो कि मर्डर हुआ है उसकी बीवी को अरेस्ट करना और उसके लिए काफ़ी सबूत इकट्ठा करना, ये बड़ा मुश्किल काम कि एक घर में सफ़े मातम बिछी हुई है और आप उसी घर में बेवा को गिरफ़्तार कर रहे हैं। दैट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क। मुलजिमान ने बहुत आसानी से तस्लीम कर लिया या आपने मनवाया था? जी हमने उनको मनवाया और एविडेंस बेस बनाया कि जब हमने उसको झूठे साबित किया, उसके बयानात की नफ़ी हुई और उसको अंदर से खलिश हुई, अंदर से डर गई कि अब इनको सारी बात पता चल गई है तो अब मैं बात बता दूं, तो फिर उसने अपना कन्फेशन किया। इस तरह के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, जैसा कि बीवी ने खावंद को मार दिया, खावंद ने बीवी को मार दिया, तशद्दुद की तादाद अब बढ़ती जा रही है, तशद्दुद बहुत बढ़ता जा रहा है। तो सर इसकी रोकथाम के लिए कोई कैंपेन क्यों नहीं चलाई जाती? जी इसमें कैंपेन चलाई तो जाती है, लेकिन ये बेसिकली मैक्रो लेवल पे कैंपेन चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो तरबियत और उसके अलावा जो सोशल मीडिया है उस पर अब अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप अच्छा देखना चाहें तो बहुत अच्छा है, बुरा देखना चाहें तो बहुत बुरा है। तो ईवल हैज़ हिज ओन अट्रैक्शन, तो ईवल की तरफ अक्सर कच्चे ज़हन ज़्यादा जाते हैं। तो ये इंडियन फिल्में देखकर और बाकी आइडियलिज़म में जाकर इस तरह के जुराइम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी, आपने जाना कि किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की थी और किस तरह से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।